Hi guys, welcome back to my channel. My name is Radhika and in today's video we are going to see how to reverse a stack using recursion. So let's get into the video. Okay, so to code this I've used this stack STL by C++. So we have pushed elements into the stack 1 2 3 4, top 4 being the topmost element. तो हमारा जो reversed stack होगा उसमें 1 topmost element होना चाहिए, right? So अब हम क्या करने वाले हैं, we are going to reverse this. So this is the reverse function that we are going to write. So this is not going to return anything, so we will just write void reverse, and this is going to accept a parameter called stack, which will be a stack, right? Let's just say it's an S. Now we will write the base condition later. First let us write कि हम क्या करना चाह रहे हैं. So we want कि हमारा एक एक stack call में एक एक element store हो जाए. That is how we build the stack, right? So हम S dot top यहाँ रख लेंगे and then we will just pop this out. And we will call the reverse function again on this updated stack. Now we have to pass this by reference because हम वापस ही stack return नहीं कर रहे. So to reflect this in main function, we'll have to pass this by reference. ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये किया. After this, when the entire thing is finished, there will be a stack with all the elements, right? अब इसका base condition क्या होगा कि जब ये वाला जो stack है, when this has become empty, मतलब हमने main stack के सारे elements को we have popped out and stored it in a memory stack, and then we just return. We don't have any business here, so we just return. Let's just not put brackets because एक ही line है, right? So ये हो गया हमारा main reverse function. What this function is going to do for us is that it is going to make a memory stack where all our elements are present in रिवर्स ऑर्डर, राइट? तो जो अब हमारा जो ये नया स्टैक है उसमें हमें क्या करना है, वी हैव टू टेक वन एलिमेंट आउट एंड पुट दिस इन द ओरिजिनल एरे रिवर्स्ड फॉर्म में. मतलब जैसे वो यहाँ है वैसे ही वो जैसे वो हमारा मेमोरी स्टैक में है एग्जैक्टली सेम वे वो मेरा ओरिजिनल स्टैक में दिखना चाहिए. तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, व्हाट आई विल डू इज आई विल इंसर्ट एट द बॉटम. ओके, so let me just write that here. We will pass x and this stack to the function. So basically what I mean by inserting at the bottom is, suppose अभी हमारा stack कुछ ऐसा दिख रहा है हमारे मेमोरी में. यहाँ पे है 4, x is equal to 3, x is equal to 2, x is equal to 1, and we have called insert bottom function. Insert, let me write just insert here with value x, मतलब वैल्यू x. ठीक है, तो जब ये फंक्शन कॉल हो रही है तब हम क्या कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू इंसर्ट एट द बॉटम. तो सबसे पहले हमारे पास 1 है, तो वी विल अभी ये जब खाली है, सो हमारा एक कंडीशन उसमें होता है कि इफ इट्स एम्प्टी वी विल पुश इट. सो इफ इट्स एम्प्टी वी आर डायरेक्टली गोइंग टू पुश इट, क्योंकि अब हमारा यही बॉटम यही टॉप सब यही है. नाउ when we are going to push the second element, जब हम 2 पुश करने जाएंगे, so we have, हमें अपना अल्टीमेट स्टैक कैसा चाहिए, हमारा अल्टीमेट स्टैक शुड लुक लाइक दिस, राइट? क्योंकि हमारा ओरिजिनल स्टैक 4 3 2 1 है. ठीक है, तो ऐसा दिखना चाहिए. तो जब 2 आएगा तब व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज बेसिकली हम इस स्टैक को खाली करेंगे, हमारा ओरिजिनल स्टैक को वी विल एम्प्टी, we will pop everything out. तो जितना भी निकालेंगे सब एक अलग मेमोरी स्टैक में स्टोर होएगा, एंड जब ये खाली हो जाएगा देन we will input our next element. So अब यहाँ पे हमने 2 इनपुट किया, नाउ इस मेमोरी स्टैक को वापस इसमें डाल देंगे, तो 1. तो बेसिकली हम लोग पूरा स्टैक खाली करके we will insert the element at the bottom and then we will fill the stack again. Suppose let's just say for 3. तो अब जब 3 इनपुट करना है हमें, तो 3 इनपुट करने के लिए again we will have to empty this entire stack because I want my 3 to be at the bottom. तो again ये सब पॉप आउट करके एक मेमोरी स्टैक में जाएगा. सबसे पहले 1 होएगा, फिर 2 होएगा, यहाँ से ये पॉप हो गया है. यहाँ से पॉप होने के बाद I will put 3 here, यहाँ पे मैं 3 डालूंगी और फिर वापस इसको यहाँ पे 2 और वापस यहाँ पे 1. ये मेमोरी स्टैक फिर से खाली हो गया. ठीक है, so this is what I'm trying to say. तो अल्टीमेटली जब मैं 4 भी डाल दूंगी तो my stack will look like this, right? 1 2 3 4. तो हमारा स्टैक रिवर्स हो गया यूजिंग बेसिकली 2 रिकर्जन्स. वी आर यूजिंग 2 रिकर्जन्स, एक रिकर्जन इसको फिल करने के लिए
और एक रिकर्जन मतलब मेमोरी स्टैक को पहले फिल करने के लिए, फिर ओरिजिनल स्टैक में वापस बॉटम सारा एलिमेंट्स भरने के लिए। इस फंक्शन को क्विकली लिख लेते हैं, void insert bottom int x and stack int. Now बेस कंडीशन जैसे हमने डिस्कस किया, जब ये एम्प्टी हो गया है मतलब हमारा ओरिजिनल स्टैक अब खाली है, सो वी आर गोइंग टू पुश द एलिमेंट इनटू इट, राइट, एंड वी विल रिटर्न फ्रॉम योर। ओके, अब जब वो खाली नहीं है मतलब वी हैव टू पॉप ऑल द एलिमेंट आउट in the memory stack so that we can put our new element there and then put everything back in the stack. So we will follow the same step, exactly same step that we did in a reverse function. We will store this element in a temporary variable. We will pop it out and we will call this insert function again. Insert bottom. तो जब तक मेरा ये स्टैक खाली नहीं हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू पॉप एवरीथिंग आउट एंड स्टोर इट इन द मेमोरी स्टैक, एंड सबसे नीचे इट इज गोइंग टू पुश द एलिमेंट एंड देन उसके बाद सारा जो हमने मेमोरी स्टैक में स्टोर किया था इन वेरिएबल टेम्प, वी विल अगेन पुश दैट बैक इन आवर मेन ओरिजिनल स्टैक, राइट। तो ये हो गया हमारा इंसर्ट बॉटम फंक्शन एंड दिस इज आवर रिवर्स फंक्शन। सो this is going combined is going to reverse my stack. अब हमारा stack अगर हम अभी print करें तो हमें क्या दिखाएगा, 4 3 2 1, and now when we reverse it should display 1 2 3 4 क्योंकि top से पहले दिखाता है। So let's just quickly write हमारा display function भी। तो यहाँ पे आपको मैं नया एक display function लिखना सिखा देती हूँ, जिससे मैंने पिछले बार arrays यूज करके बनाया था, यहाँ पे recursion यूज करके भी कर सकते हैं, सेम चीज़ है। डिस्प्ले में भी हमें ये चाहिए होगा स्टैक हमारा, यहाँ पे हमें रेफरेंस पास करने की जरूरत नहीं बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू ऑल्टर दिस स्टैक। सो एस डॉट एम्प्टी, जब ये एम्प्टी हो गया है तो मतलब वी हैव टू रिटर्न बिकॉज देन वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग एल्स। जब तक एम्प्टी नहीं है तब तक व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर स्टोरिंग दिस इन अ टेम्पररी वेरिएबल से एस एक्स पे, वी आर पॉपिंग दिस आउट एंड वी आर प्रिंटिंग दिस, राइट। हमने ये एक्स प्रिंट कर दिया। अभी जब हमने ये एक्स प्रिंट कर दिया तो उसके बाद हमारा डिस्प्ले फंक्शन इज गोइंग टू बी कॉल्ड अगेन एंड हम इसमें वापस अपना ये स्टैक पास करेंगे एंड देन वी विल पुश एवरीथिंग बैक इनटू द स्टैक। दिस कंप्लीट्स द डिस्प्ले फंक्शन एज वेल। ओके, तो ये हमारा पूरा फंक्शन है। लेट्स जस्ट रन दिस कोड एंड सी। So you can see our output is 1 2 3 4 5। अगर हमने ये पहले डिस्प्ले किया होता, डिस्प्ले एस टी यहाँ पे हैंडल कर देते हैं, तो यू सी पहले हमारा आता 4 3 2 1, राइट। So 4 3 2 1 after reversal it's 1 2 3 4. I hope you were able to follow because I know this can be very confusing. जब मैंने पहली बार ये कोड करा था एंड समझा था, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया था। I have tried my best to make this easy for you. Do let me know in the comment section below how did you like it, and stay tuned for more such videos. I will be back with another video very soon. Till then, bye bye.